Okay, after the completion of trigonometric ratios was sum of angles and difference of angles, we proceed further. We proceed to the application part of these. Means we have studied sin x plus y, it is sin x cos y plus cos x sin y. We have studied sin of x minus y, it is sin x cos y minus cos x sin y. Similarly, we have studied the formulas for cos, tan, cot. Okay, but what is the application? Okay, that is the question. What is the application? Okay, so it is used in finding the values of the angle. It is used to find the values of higher angles. Also, from here we get the allied angle formulas also. Okay, now what are allied angle formulas? Now see, you are having this sine of pi by 2 plus theta, and you are having sine of pi by 2 minus theta. Okay, suppose you have to find what is sine of pi by 2 plus theta, and you have to find what is sine of pi by 2 minus theta, where theta is angle. Okay, you get sine pi by 2 cos theta and plus cos pi by 2 sin theta. Okay, clear? This also same, sin pi by 2 cos theta minus cos pi by 2 sin theta. Okay, now sin pi by 2 is 90 degree, so sin pi by 2 value is 1, and cos pi by 2, okay, cos pi by 2 is 0, so this is 0. Okay, this includes that this part vanishes, so what you get cos theta, and here also what you get cos theta. Okay, clear? Now suppose you have to find this sin pi. Okay, you have to find this sin pi. Sin pi, it can be written as sine of pi by 2 plus pi by 2. If I take this sin pi by 2 to be theta, then I can apply this formula here. Okay, I can apply clearly this formula here. अब जब यहाँ मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर आना चाहिए cos pi by 2. Why? Because for this I am getting to be cos theta. So I should get the answer as cos pi by 2, and cos pi by 2 is nothing but 0. Okay, so this gives you the value of sin pi. Okay, now further, if I take this cos of pi by 2 plus theta, okay, then what I get, or okay, cos of pi by 2 plus theta, first of all, what I get, we get cos pi by 2 cos theta minus sin pi by 2 sin theta. Again, this cos pi by 2 has the value 0 and sin pi by 2 has the value 1. So this term vanishes and this term is 1, so we get minus sin theta. Okay, we get minus sin theta. If I proceed with cos of pi by 2 minus theta, here I get plus sign, means we get cos pi by 2 cos theta plus sin pi by 2 sin theta, and this results in sin theta because here the answer is 1. Now if I find the value of cos pi, okay, I can write this as cos of pi by 2 plus pi by 2. Again considering this pi by 2 to be theta, I apply this formula likewise जैसे यहाँ किया था. So what I get minus sin of theta, means minus sin pi by 2, which is minus 1. So for cos pi I am getting the value minus 1. Okay, अब सिर्फ ये बात 180 डिग्री मीन्स पाई इज 180 डिग्री वहाँ तक नहीं है. सी दिस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा. ओके, क्लियर? अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 पुट अप कर दूँ, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन 120. सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, इफ आई पुट थीटा इज 45 डिग्री, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री. इफ आई पुट थीटा इज 60 डिग्री, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 150 डिग्री. मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री पाई बाय 6 पुटअप किया तो हमें 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3 की वैल्यू मिलेगी. इफ आई पुट पाई बाय 4, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 वैल्यू. ओके, एंड सो ऑन. वन मोर थिंग, व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज, वी कैन सी दिस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा. साइन ऑफ पाई बाय 2 minus theta, this is also cos theta. Cos of pi by 2 plus theta, this is minus sin theta, and cos of pi by 2 minus theta, this is sin theta. Okay, this pi by 2 plus theta, pi by 2 minus theta, these are allied angles. Okay, now remember one thing, you just remember one thing, जब भी पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा, ऐसे केस में फंक्शन इसका जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा.
साइन से कॉस में चले जाएगा, और अगर कॉस है तो कॉस से साइन में चले जाएगा। सी दिस इज पाई बाय 2 प्लस थीटा। साइन अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में कॉस आ रहा है। दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर कॉस में आ रहा है। पाई बाय 2 प्लस थीटा पे अगर कॉस अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर में साइन आ रहा है, एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा पे कॉस अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर में साइन आ रहा है। ठीक है, सो फंक्शन चेंजेस, इट चेंजेस फ्रॉम साइन टू कॉस एंड फ्रॉम कॉस टू साइन, यदि पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो। ठीक है, अब ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैलिड है। मतलब अगर आप यहाँ पे tan लोगे तो इधर कॉट आ जाएगा, यहाँ पे आप tan लोगे तो कॉट आ जाएगा, यहाँ पे कॉट लोगे तो tan आएगा, यहाँ पे कॉट लोगे तो tan आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर सेक एंड कोसेक। सेक लिया तो कोसेक आएगा, कोसेक लिया तो सेक आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो रही है और पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? जब हम पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अगर मैं 30 पुटअप कर दूँ तो 120 डिग्री मिलेगा। जब हम पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करते हैं, मीन्स वी आर मूविंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 है, दिस इज आ पाई बाय 2, और प्लस थीटा मीन्स ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब ये एंगल थीटा है। तो इसमें अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा ये सीधे से सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। दिस एंगल, हाँ, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट एंगल पे साइन अप्लाई किया हुआ है। इन सेकंड क्वाड्रेंट वी नो साइन इज पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि पाई बाय 2 है। ठीक है, और आंसर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एंगल आपको देखना है पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। देखिए थीटा तो 30 डिग्री है, थीटा क्या है 30 डिग्री, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ना ये 120 डिग्री है। इट इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, इस पर साइन अप्लाई किया हुआ है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा अगर हम वैसे ही 30 कंसिडर करें तो ये 120 डिग्री हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉस इज नेगेटिव इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इसलिए आंसर में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे साइन दिया है सर, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। नो, साइन तो आंसर में आ रहा है, साइन तो आंसर में आ रहा है। पाई बाय 2 वजह से फंक्शन चेंज हो रहा है। इनिशियली फंक्शन क्या था वो देखिए, इनिशियली फंक्शन कॉस है, और वैसे भी ये पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ना ये 120 डिग्री है जहाँ पे कॉस अप्लाई हो रहा है। ये थीटा तो 30 है इसके हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो। ठीक है, 120 डिग्री एंगल तो यहाँ पे है, तो 120 डिग्री के एंगल पे कॉस अप्लाई हो रहा है। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए माइनस आने आ रहा है। बाकी ये दोनों पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा कंसिडर करोगे तो पाई बाय 2 खुद 90 है, उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन अप्लाई करो, फाइनल आंसर फंक्शन चेंज हो रहा है। पाई बाय 2 की वजह से कॉस आ रहा है, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है। एंड सेम ईयर। अब ऐसी ही बातें सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो जब आप tan पाई बाय 2 प्लस थीटा कैलकुलेट करोगे, जब आप tan पाई बाय 2 प्लस थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये आपको माइनस कॉट थीटा आएगा, और वैसे ही अगर आप कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको माइनस tan थीटा आएगा। ओके, यू विल गेट दिस कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा सीधे सीधे माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, और पाई बाय 2 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।